Hello friends, I am Nish Kumar and I am back again with a new podcast video. Today at present I am sitting in the office of Align Together Solutions Private Limited, which is situated at Gulmohar, Shahpura, Bhopal, Madhya Pradesh. Today we have with us an important person to have a talk with us. So who is doing an amazing job in the field of IT sector. So let us hear about him, let us know about his story in his own words. So without wasting any time, I would like to welcome the Chief Executive Officer of the Align Together Solutions Private Limited, Mr. Piyush Shah, sir. Sir, welcome. Yeah, call me Piyush here, and thank you so much for having me in your talk show. And it's a pleasure hosting all of you in our office today. Yes. Pleasure is all mine. Okay, sir. सर जैसे कि हम शुरुआत से बात करेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं. Sure. Basically, I take a pride in saying कि मैं भोपाल को बिलोंग करता हूँ. Yes. मेरी स्कूलिंग कैंपियन स्कूल भोपाल से हुई थी. Okay. और 94 से 98 मैंने अपनी जी की NIT भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. फिर इन्फोसिस 98 में फर्स्ट टाइम भोपाल आई थी. थोड़ा लेट हो गई थी भोपाल आने में, तो कैंपस में किसी और कंपनी में हो चुका था मेरा लाइसेंस रिज्यूम में. इन्फोसिस का वॉक इन दिया था और इन्फोसिस में फिर मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और इन्फोसिस मैंने ज्वाइन की, बैंगलोर में ज्वाइन की. 2 साल मैंने इन्फोसिस में मेरा लगाव रहा, उनसे काम किया मैंने. So worked there on the telecom projects of Infosys. For some time I was in the US as well. Worked there in the US for about 3-4 months. But then मुझे भोपाल आना था, इनफैक्ट मुझे इंडिया आना था पहले, और मुझे भोपाल से काफी लगाव रहा था शुरू से ही. मुझे बैंगलोर कोई बहुत ज्यादा इतना किक नहीं थी उसमें, क्योंकि बैंगलोर में करना है. बैंगलोर मेरी कर्मभूमि रही है, लेकिन डेफिनेटली जन्मभूमि मैं बोलूँगा मध्य प्रदेश रही. Yes, sir. I have been born in I was born in Jodhpur, but then brought up in Bhopal. Okay. So मैं मेरा MBA में हुआ, कैट में दिया था, तो IIM लखनऊ में हुआ. तो फिर मैंने I left Infosys to do further studies at IIM Lucknow. Yes. So did my post graduation from IIM Lucknow, and I got an opportunity to do my exchange term from SRD in Barcelona. Okay. That's great. Yeah. So I was always inclined towards IT industry. So TCS came at IIM Lucknow. That was the first time TCS visited any IIM. They came up with the IIM campus hiring program in 2002. 2002 anyway was not so good year for MBA grads because 2 planes crashed on the tower and then the economy went down like anything. Yes. So TCS, I think led by Mr. N. Chandrasekharan, who was about to become a CEO at that time. Yes. In TCS, he came up with this program that we should go to IIMs. So I was so fortunate one to get into TCS at that time. TCS offered us a very good profile, so I joined TCS under the mentorship of Mr. N. Chandrasekharan, and then I was sent to Germany as a relationship manager with one of the telecom accounts. Great. Post that, I worked with various IT majors, including TCS, Capgemini, Cognizant, various parts of the world. Due to some family reasons and due to some personal ambition, I wanted to come back to Bhopal. So that's when 2016 is when I moved to Bhopal and I started this firm, Align Together Solutions Private Limited. Okay. Initial few years were a little bit slow. We were not very clear what to do, Yes. what not to do. We were everywhere. But then we streamlined our operation. We decided, okay, we will focus on some select services and we will build our own product. Because being in Bhopal, it's very important that we should focus more on the marketing side rather than the sales side, because sales हम कितना भी करें हमें बहुत मुश्किल होती है. सेल्स में अगर हम एफर्ट भोपाल में डालेंगे और हम अगर 1 मिलियन का रेवेन्यू करेंगे, उतना ही एफर्ट डाल के हम शायद बैंगलोर में वगैरह जाके हम शायद 100 मिलियन का कर सकते हैं. तो वो चैलेंज था. तो मार्केटिंग में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा और SaaS करके कंसेप्ट जो आ रहा है आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एग्जैक्टली, उसमें लगा कि उसमें मार्केटिंग ज्यादा रहती है और सेल्स कम रहती है. तो कुल मिला के सोचा कि लेट्स गेट इनटू प्रोडक्ट बिजनेस. और आईटी इंडस्ट्री में मेरा काफी सेल्स मार्केटिंग में काफी एक्सपोजर था. तो अमंग वेरियस थिंग्स, बीइंग अ डेवलपमेंट और बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बीइंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और इन सेल्स एंड मार्केटिंग, आई थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग मेरे लिए शायद ज्यादा रिलेटिवली एडवांटेजेस था. तो हमने Align Together .live करके जो प्रोडक्ट बनाया है, इसका हमने एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया कि भाई हम बनाएंगे. फाउंडेशन रखी इसकी हमने, और अभी हम लोग Align Together .live प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं दिसंबर एंड में. और Align Together .online के थ्रू हम सर्विसेज दे रहे हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्लाइंट्स को. क्लाइंट्स हमारे स्टार्टअप भी हैं और एक मिड और लार्ज साइज कंपनी भी बोल सकते हैं, वो भी है. यस. सर के वेंचर के बारे में हमने समझा, बहुत
बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक क्लाइंट सबसे बड़ी मेरी एक प्रॉब्लम मैं सुनता है, मतलब जितने को मैंने पॉडकास्ट किया, कि डोमेस्टिक क्लाइंट्स का जो माइंडसेट होता है कंपेरेटिवली, जैसे आपने कहा कि आपका कस्टमर बेस इट इज काइंड ऑफ हाइब्रिड मोड में है कि फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं प्लस आपके पास डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हैं। तो डील करने में किसको ज्यादा आपको, या कन्विंस करने में किसको ज्यादा आपको मतलब लगता है कि थोड़ा सही रहता है? अदरवाइज मतलब हमारे यहाँ पे क्या एक माइंडसेट है डोमेस्टिक जो लोग जैसे क्लाउड एज सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो जो टेक्निकल फील्ड के नहीं है तो कोई चीज जैसे हम ऑटोमेशन में डालते हैं, एंटरप्राइज कुछ ऑफर करते हैं या भी मॉडल्स हैं, तो आप उसको कैसे मतलब कन्विंस कर पाते हैं कि आपका एक डोमेस्टिक क्लाइंट बेस बन पाए? बेसिकली हम बहुत डिफरेंशिएट नहीं करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में। हमें एट द एंड ऑफ द डे एक डिलीवर करना रहता है काम। हम उतनी ही लगन और श्रद्धा से काम करते हैं जितना किसी भी क्लाइंट के लिए करें, चाहे क्लाइंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो डॉलर में पे कर रहा हो, पाउंड में पे कर रहा हो, चाहे हम डिफरेंस नहीं करते। बट हाँ, ऑफरेट ये देखा गया है कि जो इंडियन कस्टमर्स होते हैं उनके पास थोड़ा सा मतलब बजट क्रंच रहता है बिकॉज ऑफ द करेंसी थिंग। गाइडलाइंस उनकी शॉर्ट होती है, प्रेशर रहता है हम लोग के पास, और उनका रहता है कि भाई आसपास उनके इंडियंस ही बैठे हैं जो कि उसी बैच पे होते हैं, तो हमें एडवांटेजेस जो बताने रहते हैं डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए वो रिलेटिवली ज्यादा बताने पड़ते हैं। भाई हमारा काम बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे आपके लिए, और करेंसी का दबाव रहता है कि अगर हमारी करेंसी रेट अगर 1.25 लाख पर मंथ है किसी बंदे की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसी रेट पे शायद उनको वहां पे भी मिल जाएगा, दिल्ली या बैंगलोर या पुणे में मिल जाएगा, तो हमारे पास वो क्यों आएंगे? तो थोड़ा हसल एक मतलब वही है, थोड़ा सा काफी ज्यादा रहता है जैसे। तो और इंटरनेशनल में ये रहता है कि अगर इंटरनेशनल में एक बार हमने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है, किसी क्लाइंट के सामने थोड़ा सा दिखा दिया है, इनका हमारा रेफरल अगर अच्छा है, तो हमारे लिए पीस ऑफ केक रहता है। तो वी हैव वन ऑफ आवर इंटरनेशनल क्लाइंट लाइक वापी कैश हमारे कस्टमर हैं, उनके साथ में काम किया, उन्होंने हमें कहीं और रेफर किया। जब उन्होंने हमें रेफर किया तो उनका था कि भाई वापी कैश के सीईओ ने एलाइंड को रेफर किया है, ऑब्वियसली काम इनका अच्छा होगा। तो रेफरल वहां पे ज्यादा चलता है इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में क्रेडेंशियल्स आपकी किस हिसाब से काम करते हैं, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज लाइक एवरी आवर। I mean, we have to be always on our toes. Probably when we are working with international customers, we have to be on toes probably on a daily basis. But here we have to be on hourly basis. सर आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। अलाइन टुगेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सर तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बात कि आपकी जो, मैंने अभी देखा कि आपका जो कंपनी साइज है, आप बहुत कम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेसिकली, और क्या ये आउटसोर्स भी करती है सर्विस? मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट डेवलप करती है, आप कुछ चीजें आउटसोर्स भी करते हैं, तो ये चीजों पे थोड़ा सा आप एक मतलब लाइट थ्रो करेंगे तो अच्छा हो। So there were various stages of our development, I would say. हम पहले काफी छोटे थे, शुरुआत छोटे थे, हमने स्क्रैच से स्टार्ट की है हमने। तो हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन टीम नहीं है, तो हमने उसको आउटसोर्स भी किया। जैसे यहाँ लोकल कुछ कंपनी है उनको हमने काम दिया, और उन्होंने हमारे साथ 4-5 प्रोजेक्ट साथ में किए और डिलीवर किया। फिर आइडिया ये था कि टीम हम लोग अपनी वन रूफ ही रखें टीम। हम लोग we underwent all this kind of difficult times during COVID. बट अदरवाइज हमें ये था कि हम लोग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, टीम एक हम आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे, काम सारा आइडिएशन उसका एक अंडर वन रूफ हो रहा है। जो पूरा एजाइल डेवलपमेंट में काम होता है कि भाई जो डिजाइनर्स हैं वो डेवलप करते हैं, बिजनेस लॉजिक्स उसमें जाते हैं, यूएक्स बनाते समय सारे। हमें फिर किसी का ये रहता है कि भाई आप जो लॉजिक सोच रहे हैं शायद इसको बेटर किया जा सकता है, तो लॉजिक भी हम लोग ऑन द फ्लाई चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली यूआई यूएक्स पर उसको चेंज कर देते हैं स्क्रीन पे। और यूआई डेवलपर जो हम लोग रिएक्ट और नोड वगैरह पे काम करते हैं, तो तुरंत हम लोग उसको चेंज भी कर देते हैं। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम लोग इन हाउस ही टीम रखें। टीम को अफोर्ड करना भी होना पड़ता है कि हम कितनी बड़ी टीम अफोर्ड कर सकते हैं। आइडियली ऑलवेज पीपल वेलकम मोर एंड मोर हेल्पिंग हैंड्स, बट अभी हमारी थिंकिंग ये है कि हमें स्मार्ट लोग चाहिए हैं जो कि हमारे लाइक माइंडेड हों, जो भोपाल में रहना पसंद करते हो, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो। वो हमें इतनी क्वांटिटी में नहीं मिलते जितने में चाहिए होते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग का स्केल अप हो रहा है। एज आई सेड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, हमने अपना ऑर्गेनिक ग्रोथ किया अभी तक। तो 1 से हम 20 बन रहे हैं, अब 20 के बाद हमारे 50 बनने का है। तो
अभी आपका कंपनी साइज टोटल कितना है? अभी हमारा ये है कि मार्च एंड हमारा जो होगा मार्च 23 हमारा 50 people से होगा. Okay, That is so it's a good number, sir. Yeah, that is what we are working on. Yeah. Actually, Align platform हम जो बना रहे हैं, Yes, sir. we want to be the top 3 services platform in the world. Yeah. So we want to compete with Upwork, Fiverr, Oh, yeah. in that run. So as you know, Upwork is more than 500 million, and Fiverr is 200 million. तो हमें उस लीग में जाना है. Yes, sir. Both the companies are Nasdaq listed. We also wish to become a Nasdaq listed company sometime. Yes, sir. So टीम्स हमारे बहुत हाई हैं. Accordingly हमारे स्किल्स और एक्सपर्टीज भी हम लोग बढ़ा रहे हैं अपनी. Yes, sir. और रीच भी बढ़ा रहे हैं. ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. Sure. और सर मुझे जानकारी चाहिए थी, जैसे अलाइंड विद सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी फर्म है, तो आपकी हायरिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसे मानिए हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, जैसे वो अप्लाई करना चाहें, बिल्कुल. तो क्या ये ऑनलाइन कैंपस ड्राइव होती है, ऑफलाइन कैंपस ड्राइव होती है, ओपन कैंपस ड्राइव, या पर्टिकुलरली किसी कॉलेज में विजिट करते हैं? Sure. और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? आपके टेस्टिंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं, या उनको क्वालिफाई करना हो, कैसे बच्चे कैसे करता है? So again, I think Aligned has been fortunate to be associated with UIT RGV for quite some time. Yes. आपके कॉलेज के काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने हमारे इंटर्नशिप करी है. Yes, sir. As I said, that probably 10 to 12 people who are done internship with us. काफी अच्छा काम भी किया. Yes, sir. But those times were different. Those were the COVID times when the attendance was not compulsory in the colleges. तो वो हमारे लिए ओवरऑल थोड़ा टफ टाइम रहा था कोविड का. बट उससे गुड टाइम ये था कि काफी सारे इंटर्न्स हमारे पास आए जिन्होंने रिमोटली भी करी और कॉलेज हमारे कैंपस में भी आके काम किया. हमारे यहाँ कुछ कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी से. अगर मैं बात करूँ तो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ग्रुप से हमारा एक एमओयू है कि हमें जब भी कोई इंटर्न्स या फुल टाइम चाहिए होते हैं तो दे अकॉर्ड अस अ गुड प्रायोरिटी ऑन दैट मैटर. बैंडविड्थ क्या होती है इंटर्न्स को हायर करने की? आप कितना अलाउ करती है बैंडविड्थ आपकी कंपनी? कितने मतलब पर्सन्स को टेक करते हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइम्स. जैसे किसी समय हमारे पास ये था कि हम 6-7 इंटर्न्स ले सकते थे. Okay. कभी टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है कि हमें कभी रिएक्ट पे चाहिए, नोड पे चाहिए, जावा पे चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए. तो काफी वेरी करता है, डिपेंड करता है. और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें शुरू में 1 महीना लगता है सामने वाले को कुछ बताने में, सिखाने में. तो ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद उसके कुछ और कंसर्न्स आ जाए कि मुझे तो कॉलेज जाना ही है, उससे प्रॉब्लम्स आती हैं. इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने यहाँ पे फाइनल ईयर में अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं रखी है. और ये बहुत काफी बड़ा एक ट्रेंड चला आ रहा है सारे कॉलेजेस में इंडिया में कि फाइनल ईयर में अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं रखी. इंडस्ट्री एक्सपोजर ज्यादा है. Yes, sir. तो मैं आपके इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट करूंगा Yes, sir. थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को देते हैं. Yes, sir. तो उससे ये कॉर्पोरेट लाइक अलाइन टुगेदर एंड अदर फॉर्म्स इन भोपाल दे विल बी एबल टू टेक बेटर इनटेक ऑफ इंटर्न्स. यस सर, क्योंकि सर अभी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Yes. आरजीपी इनके बच्चे भी हैं, उन्होंने एक बीटेक कोर्स लॉन्च किया है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स. तो उसमें साइन इन एमओयू विद टीसीएस, जिसमें उनका करिकुलम, मोस्ट ऑफ द करिकुलम टीसीएस ने डिजाइन किया है. तो उसमें आई थिंक इवन सेमेस्टर्स में प्रोविजन है इंटर्नशिप के साथ. तो मैं कोशिश यही करूंगा बच्चे से कि टाइम निकाल के एक, अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर लेना है, तो आप ऐसे कई कंपनी से, जैसे सर ने बताया, अलाइंड विद सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस एरिया में काफी अच्छा वर्क कर रही है, तो आप यहाँ पे आके डिफरेंट अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं. एक हायरिंग प्रोसेस होती है जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है. यस सर. और सर क्या स्किल्स बच्चों में आप देखते हैं? बेसिकली जैसे कोई बच्चा है, मैंने देखा अभी जो फर्स्ट ईयर में आए हैं मोस्टली बच्चे, तो कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कंप्यूटर के बारे में, कुछ भी जानते नहीं. तो उन्हें क्या करना चाहिए बेसिक? जैसे कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर सी पढ़े, C++ पढ़े, पाइथन पढ़े, कि आजकल रिएक्ट, नोड.जेएस एंड ऑल, ये सब लैंग्वेज पे फोकस करें, किस पे करें? और कोई बच्चे कहते हैं AWS, Azure, क्लाउड सर्विसेज, जैसे गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन कर लें, तो जिससे कि हायरिंग में हमारे को कोई इश्यू ना. तो सर क्या चाहते हैं एज एन इंटर्न, या कोई प्रेशर आता है, तो आप उसमें क्या स्किल्स देखते हैं? जो क्योंकि अल्टीमेटली वो सीख तो यहाँ जाता ही है, आप लोग के फ्रेमवर्क पे काम करना. तो स्टार्टिंग में आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या क्या स्किल्स आप देखते हैं हायर करने के लिए? So this is a very good question, I would say. मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, ये वाले आपने जो कर रहे हैं. एसेंशियली देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है.
Yes, sir. अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बैक एंड भी कर सकते हैं, आप एक आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आप AWS में जाके क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग ये सब कर सकते हैं। Yes, sir. ऑफलाइन ये देखा गया है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ग्लैमरस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे कि भाई NLP में कर लेता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, या मैं टेंसरफ्लो कर लूँ, केरास कर लूँ, तो मैं मशीन लर्निंग का बोलने का हो जाएगा मुझे। इनफैक्ट आई एम फ्लडेड विद रेज्यूमे, कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो टॉप के कॉलेजेस हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी रेज्यूमे में देखता हूँ, सबका ये रहता है कि मैंने LLP किया है, ये किया, मशीन लर्निंग किया है। बट मैं बात करूंगा कि अगर हम लोग मुझसे कई लोग ये पूछते भी हैं, आए दिन मुझसे पूछा जाता है, तो मैं मुझसे बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट है जावास्क्रिप्ट आती है। जावास्क्रिप्ट कंसोल मतलब आपकी ब्राउजर पे चलती है और उससे आप बहुत अच्छी मैजिकल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बहुत इजी है सीखने के लिए। जावास्क्रिप्ट मैं समझता हूँ अगर आप YouTube से ही अगर बैठते हैं तो आप शायद 3 हफ्ते में उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं उसके। अगर 3 हफ्ते अगर आपने 6 घंटे कोडिंग कर ली जावास्क्रिप्ट पे तो आपको आने लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, और फिर वही बैकएंड में भी चल जाती है लैंग्वेज आपकी नोड के फॉर्म में, एडोनिस के फॉर्म में, तो आपको बहुत इजी होता है कि फुल स्टैक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने इम्प्रोवाइज करने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रोवाइज करने के लिए आप अगर DSA करते हैं, आप अपना एप्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, गुड टू हैव, बट जो रियल कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाएं। खुद की एप्लीकेशन अपने लैपटॉप पे बैठ के आराम से 6-6 घंटे करके कोड करके बनाएं और फ्रेमवर्क्स यूज करें, फिर लाइब्रेरी यूज करें, रिएक्ट करें, नेक्स्ट.js यूज करें। सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। आपको बस अपने टेबल कुर्सी पे बैठना है, कुछ वेबसाइट्स पे जाना है और सीखना है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। मैं आशा करता हूँ कि बच्चे इस पर वर्क करेंगे। तो आप ये चीज को ध्यान में रखें बच्चों की, आपको ट्रेंड को देख के फॉलो नहीं करना है। बेसिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर कि आप क्या अप्रोच लगाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को, उस पर फोकस करना है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का बेसिकली नहीं। और बाकी सब बताइए इसमें क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आप एक ओवरऑल अपने डेवलपमेंट के लिए कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, लॉजिकल थिंकिंग को। तो बेसिकली आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगर आपको सीखना है तो आप कोई भी एक डोमेन पे वर्क करें, बट आपको खुद की एक एप्लीकेशन बना के जब तक आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देखेंगे, जितना प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो तब तक आप उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो सर थैंक यू, आपने ये बताया। थैंक यू सो मच सर। ये जो आपकी जर्नी रही काफी इंटरेस्टिंग रही कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर से भी काफी अच्छे पद पे रहे आप, काफी एक्सपोजर और काफी एक्सपीरियंस गेन करके फिर आपने IIM से MBA किया। उसके बाद फिर आपने ये कंपनी सेटअप किया। तो सर ये मैं जानना चाहूंगा आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब आपको की मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार मुझे अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे पद पे थे, ऑलरेडी अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे, लेकिन आपका क्यों एक इंक्लिनेशन क्यों आया कि यार मुझे खुद का एक, वो भी IT सेक्टर में करना है। तो सर इसमें थोड़ा सा एक प्रकाश, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना बेसिकली ये एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है, फिर आप कैसे फिर खुद का एक वेंचर स्टार्ट करने की सोचते, तो उस पर भी थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हुए मैं इसको पूछ रहा हूँ। श्योर, इट्स गुड क्वेश्चन। थोड़ा मैं पर्सनल आंसर थोड़ा पर्सनल भी होगा। प्रॉब्ली जो मेरे साथ रहे हैं सिचुएशन वो शायद दूसरे के साथ नहीं रहते, बट हैविंग सेड दैट, जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो क्राउड से अलग दिखना चाहते हैं। Even though I scored like I was a top ranker in various classes and everything, so थोड़ा सा एक अलग से हमें एक वो रहता है कि हमें कुछ अलग करना है, हमें अलग दिखाना है, तो हमें लगता है कि हम खुद का बिजनेस करेंगे, हम जॉब के लिए क्यों करेंगे। सो वो तो बचपन से था कि शायद मुझे नहीं, मेरे कई लोगों को भी था। जैसे आप बचपन में देखते हैं कि क्या बनना चाहते हो बच्चे, तो बोलते हैं पायलट बनना चाहता हूँ, फिर वो आगे चल के एक डॉक्टर इंजीनियर थी उसमें जाता है, फिर उसके बाद उसमें अलग था। हमारे समय आई एम टॉकिंग अबाउट 90s में, जब हम लोग अर्ली 90s में थे, तो ज्यादातर ये होता था या तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तो इवन दो आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, मैं चेस भी खेलता था और क्रिकेट भी 6 घंटे खेलता था, तो कपिल देव की फोटोज भी लगाता था, तो वो एक era था। लेकिन फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग में आते हैं, इंजीनियरिंग में फिर लगता है कि स्पोर्ट्स वगैरह में तो नहीं जाना है, लेकिन अपना खुद का कुछ करना है। फिर गारंटी थे सर, क्योंकि बहुत कम होता है कि आप एजुकेशन में प्लस स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, बट आप एक स्ट्रीम चूज करते हो आपकी ऊपर। तो सर 10th और 12th में जब भी कोई पूछता था मैं स्पोर्ट्समैन ही बनना है, बट
फिर लेकिन एक थोड़ी सी मैं बोलूंगा रैट रेस बोले या फिर शीप का हम लोग एक भेड़ चाल चलते हैं कि भाई कॉलेज में कैंपस आ रहा है, इन्फोसिस तो 12,000 दे रही है, एचसीएल 14,000 दे रही है जॉब का उस समय था, हमें अच्छी जॉब में लेके जाना है। तो एक भेड़ चाल थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और एमबीए उस समय एक था कि भाई एमबीए कर लेते हैं तो उससे हमें काफी अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो हम लोग तो एमबीए तरफ इंक्लिनेशन भी हो जाता है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, क्या कर सकते हैं। गिवन अ चांस आई वुड नॉट हैव डन एन एमबीए। अगर आप मुझे कोई बोलता है कि एमबीए करना तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि भैया एमबीए इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और आप एल्गोरिथम्स अच्छे से बना लेते हैं तो ऑलवेज गो हेड विद दिस टेक्निकल साइड। तो एनीवे था कि हमने कुछ शुरू करना है, अपना खुद का कुछ करना है। मैंने जॉब बहुत की और फाइनली मैंने कंक्लूड किया कि मैं जॉब ज्यादा समय तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे जो किक था उससे नहीं मिल रहा था कि मुझे कुछ सेल्स में अवार्ड मिल रहा है, उस चीज से किक नहीं था। बट एक खुद का वेंचर शुरू करते हैं तो नॉट बिकॉज ऑफ माई फुलफिलमेंट, बट मुझे लगा कि मैं भोपाल में रह के कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ और वो उन लोगों के घर चल रहे हैं, तो वो एक किक देता है, वो उससे बड़ा किक कुछ नहीं होता। यस सर, तो वो एक किक था। भोपाल में आने के लिए मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी थे कि I wanted to come back to Bhopal because my father had a paralytic attack. He was with me in Bangalore. He wanted to have the rest of his life in Bhopal. So actually यहाँ पे भोपाल में लाने का एक बहुत मेजर रीजन था कि भाई इनफैक्ट इट वाज क्वाइट अ पर्सनल थिंग मेरी मम्मी की भाई मेरे पापा एक वेल अकम्प्लिश्ड सन थे, एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, काफी उन्होंने काम किया। मुझे हमेशा डर लगा था कि अगर बैंगलोर में अगर एक्सपायर हो गए तो चार लोग जाके जाएंगे और इलेक्ट्रिक चेयर को चलाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत अगेंस्ट में था। तो मुझे भोपाल आना था। अब भोपाल आने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेचे। दैनिक भास्कर में सुधी, गिरीश, पवन जी तीनों के मैंने काफी चक्कर लगाए, खूब मेलबाजी की। फिर मैंने दिलीप बिल्डकॉन में भी गया, सबसे पहले काफी रिक्वेस्ट की। फिर मुझे लगा कि मैं ऑटोक्लेव रिलेटेड कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी होती है, स्विडिश टेक्नोलॉजी होती है, उसका मैं प्लांट लगाता हूँ, उसमें फ्लाई ऐश की ब्रिक बनती है। तो मैंने उसके लिए सूरत गया, सूरत में देखा मैजिक ट्री करके उसका प्लांट देखा। फिर बीना गया, बीना में उनसे बात की कि फ्लाई ऐश क्या हुआ देंगे। फिर मैंने पूरा सेट किया कि 25 करोड़ का भी प्लांट लगाता हूँ। देयर वर सम गुड बिल्डर्स इन भोपाल। उन्होंने कहा भाई पीयूष तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ले लेंगे और हम कमिट कर रहे हैं कि हम आपको सारी फंडिंग वगैरह देंगे। बट मुझे लगा कि डाउन टर्न आने वाला था, 2018 का डाउन टर्न। मतलब मुझे लग रहा था कि एक जो आया भी बाद में काफी जल्दी आ गया कि बहुत ज्यादा एकदम से कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये टेक्नोलॉजी मैं अगर लगाऊंगा तो हम एक एमबीए में एक थ्रेट्स पढ़ते हैं, माइकल पोर्टर का एक मॉडल होता है जो एमबीए ग्रेड्स रिलेट कर सकते हैं, उसमें थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस देखा जाता है। तो इस वाले मॉडल में मैंने कहा थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस कुछ भी नहीं है। तो मैंने जितनी पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ डिस्कस किए हैं, लेकिन आगे कोई भी बंदा जिसको थोड़ा सा एक्सपोजर है इस टेक्नोलॉजी का, वो आके लगा देगा। चाइना से ही बंदे आते हैं, 1 करोड़ फीस लेते हैं और वो प्लांट सबसे बड़ा चलते हैं। फिर मैंने कहा यार इसमें तो फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और ये निकलती नहीं है, तो उसमें थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस मतलब है ही नहीं कुछ उसमें। फिर ये लगा कि कई सारे बिजनेस मॉडल किए, फिर लगा कि ये सैस कंसेप्ट जो आ रहा है ये बड़ी बड़ी कंपनियों में आके मैंने नहीं समझाया। इनफैक्ट आई गॉट अ चांस टू मीट विद जेंटलमैन निवेश सिंह इन अ पॉइंट। उसके साथ मैंने थोड़ा समय बिताया एंड उनसे मुझे समझ में आया कि सैस की कितनी पावर है। हमारा लाइफ टुगेदर डॉट लाइव इज नॉट अ सैस बिजनेस मॉडल, बट उससे रिलेटेड है। और मुझे लगा कि प्रोडक्ट बिजनेस में इंडिया बहुत कुछ कर सकती है। प्रोडक्ट बिजनेस में एक सेल्स एंड मार्केटिंग एक एक्सपर्टीज है जिसमें रिलेटिवली वीक है। टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग वीक बिल्कुल नहीं है। यूआई यूएक्स हमारा थोड़ा सा वीकर साइड में होता है। अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज से, अगर मैं बात करूं जर्मनी से या फिर डेनवर से जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनमें और हमें क्या डिफरेंस है तो मैं बताऊंगा शायद यूआईएक्स का है और एक सेल्स एंड मार्केटिंग का चीज है वो नहीं आती है। ये अगर हमने मास्टर कर ली तो मुझे लगा हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इवेंचुअली आई थॉट कि मुझे इसी इंडस्ट्री में आना चाहिए। आई एम प्रॉब्ली गुड फॉर नथिंग एल्स। ये बात भी लगी कि अननेसेसरी मैं मशीनरी में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा उतना अच्छा जितना दूसरे लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और एट एंड ऑफ द डे आई डोंट हैव एनी डीप पॉकेट। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद 4 बैंक लोन्स। एक एजुकेशन लोन तो था ही, इसके साथ 2 एजुकेशन लोन रहे, इनफैक्ट 2 मैंने हाउसिंग लोन लिए, एक फ्लैट लिया, फिर एक हाउस लिया, एक व्हीकल लोन भी लिया। तो लोन लेके हमने अपने कैरियर को बनाया है। और ड्यू टू दोज रीजंस आल्सो आई हैड टू चूज सम ऑन साइट स्ट्रेंथ कि भाई मैं 2-3 साल यूएस में रहा, 2 साल में स्वीडन में रहा, जर्मनी में रहा। बट हाँ ऐसा कुछ मेरे किक नहीं था कि मुझे बाहर रहना है। मैंने कभी भी इनफैक्ट एक मजा बात यह है कि मेरे बच्चे थोड़े लेट प्रोडक्शन
I have a 11-year-old daughter and a 9-year-old son. Yes. And by the way, I'm 45 years old. Yeah. तो लेट प्रोडक्शन रहे हैं। और रीजन ये था कि मुझे अमेरिकन सिटीजन बॉर्न नहीं करना था। मैं चाहता था बच्चे पैदा हो इंडिया में ही। Yes, sir. दोनों बैंगलोर में बड़ी हॉस्पिटल में पैदा हुए। Yeah. लेकिन हाँ, but I'm glad to have nurturing some Indian born citizen, so I'm very fortunate in that matter. Yeah. तो आपका आंसर मैं क्वेश्चन से थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ कई जगह, बट आंसर ये था कि कुछ हालात थे, Yes, sir. कुछ पर्सनल एम्बिशन था, Yes. जिसके कारण वी टर्न अप लाइक एंटरप्रेन्योर। Yes. और अभी मैं बोलूंगा आई एम वेरी स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर, और बहुत आंधी तूफान हम लोग झेल रहे हैं। Yes, sir. कौन सा आंधी तूफान हमें बता दे वो भी हमें नहीं पता, लेकिन चीजें बेटर हो रही है विद गॉड ग्रेस एंड विद एवरीबॉडी सपोर्ट। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। Yes, sir. बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है सर, की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर से मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं वो भी जानने के लिए उत्सुक होंगे। सर जो आपकी जर्नी रही कि आप अपना सबसे पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के बाद आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर किया, वहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर आपको एक कहीं ना कहीं मन में लगा कि मुझे IIM की और भी ग्रो करना चाहिए, जो भी आपका उस विषय में हम जानेंगे। तो आपकी जर्नी IIM की कैसी रही, क्योंकि जब हमारा एक गैप हो जाता है रेगुलर स्टडीज से एजुकेशन में, जब हम वर्किंग में होते हैं, तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, और आपको तैयारी के साथ साथ आपने मतलब तैयारी कर रहे थे आप बेसिकली, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार मुझे फिर से वहां से शुरू करना पड़ेगा, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में अपने स्टार्ट की थी पढ़ाई, क्योंकि IIM में भी आपको हुई, और आपका जो कॉर्पोरेट एक प्रोफाइल बन चुका था, तो उसकी क्या आपको वहां पे लगा कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल पाया कि जिससे आपको वहां पे फायदा हो? तो थोड़ी चीजों पे प्रकाश डालिए सर, ताकि बच्चे भी समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप एक डिग्री ऑफ कोरिलेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करने का और कैट की तैयारी करने का काफी रहता है। यस सर। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जो मेरा स्ट्रेस इंटरव्यू करना चाहा था IIM लखनऊ के प्रोफेसर्स ने, तो मेरे बैठने से पहले उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट इज दिस, सो मेनी पीपल आर कमिंग फ्रॉम इन्फोसिस, व्हाट इज दिस, इन्फोसिस इंकरेजेस टू जॉइन IIMs। तो मैंने चेयर पे बैठा भी नहीं था, तो थोड़ा सा स्ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक आंसर दिमाग में मेरे आ गया कि मैंने बोला कि सर आई कांट से whether Infosys encourages us to join IIMs or not, but I can only say that don't discourage us from joining IIMs. Yeah. तो मुझे समझे नहीं क्या होगा, बोले व्हाट डू यू मीन बाय दिस। मैंने कहा मैं सिट, तो उन्होंने कहा बैठो बात बताओ। मैंने बोला देखिए यही चीज मैंने उनको बोली कि मुझे लगता है कि कोरिलेशन बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और कैट की तैयारी का। जब हमारा इन्फोसिस में हमारा बॉन्ड वगैरह भी रहता है, 1 साल का बॉन्ड है, और मैंने अपने सीनियर्स को देखा है और हमारे साथ भी देख रहे हैं कि अगर किसी का कैट में के थ्रू किसी कॉलेज में हो जाता है, तो इन्फोसिस परेशान नहीं करती है कि आपको बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर आपके ये क्लाइंट लेवल्स हैं। हम लोग उन्हें बताते हैं कि हमें जाना है और 1 महीने में जाना पड़ेगा। दे अलाउ अस टू गो विदाउट एनी ब्रेकेज फी और एनीथिंग लाइक दैट। और अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस में भी जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उस समय, हमारे पीछे HR हेड थी फनीश मूर्ति, उस समय सेल्स एंड मार्केटिंग हेड थी, ये सब IIM अहमदाबाद के अलमने थी। तो मैंने कहा कि हमें जाने देते हैं और वहां पे ये जाते हैं और वहां से हायर करके आते हैं, अच्छी पोजीशंस पे लेके आते हैं। तो ऑल इन ऑल एक इंकरेजिंग एटमॉस्फेयर कहना गलत होगा, बट ये कहीं कि डिस्करेज तो नहीं करते हैं, अच्छे नोट पे सब लोग जाते हैं और करते हैं। इसमें मुझे बात का फायदा हुआ इन्फोसिस में काम करके। मैंने अगर कैट का इंटरव्यू वगैरह किया तो मुझे डेफिनेटली उससे काफी फायदा हुआ। मेरा इंट्रैक्शन एक इंटरनेशनल क्लाइंट से होता था, जो कि मुझे काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करता था। यस सर। और दूसरी प्रिपरेशन एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके और बढ़ते हैं जैसे जैसे आप कोड क्रैक करते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि डेफिनेटली एक फायदा है कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के भी काम करते हैं, या दूसरे तरीके से ये देखें कि कोई घाटा नहीं है, मतलब आपको फायदा है नहीं ना सोचें, लेकिन ये देखें कि अब आ गए हैं तो काम करें, अच्छे से करें। घाटे का नहीं देखें कि वो मेरा बंदा है, वो तो बैठ के पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है कॉर्पोरेट एग्जाम की, और यहाँ काम भी करना पड़ रहा है, ऐसा ना सोचें। अच्छे सोचें, पॉजिटिव सोच लेके आए और अपना आप जिसका नमक खा रहे हैं वो काम भी करें अच्छे से और अपनी तैयारी भी करें। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सारी जानकारी आपने हमसे साझा की।
मैं आपसे चाहूंगा कि आप alignttogether.live हमारा एक प्लेटफॉर्म आ रहा है जो कि कॉमन मासेस से है। सो कहीं ना कहीं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एक जर्नी जो रही है, अभी मैं बोलूंगा कि जर्नी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी जर्नी आधी हुई है। 45 ईयर्स हो गए, शायद मैं 90 साल जी लूंगा तो 45 ईयर्स हो गए, तो ये आगे की जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से। alignttogether.live एक नया बेबी बॉर्न हो रहा है। वी हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस वन कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिक मार्केट प्लेस है फॉर लाइव इंटरेक्टिव सर्विसेज। जैसे आपने लाइव इंटरेक्टिव सर्विसेज बहुत सुने होंगे कि काफी सारे पोर्टल्स हैं जो लाइव इंटरेक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, बट कोई भी मार्केट प्लेस के फैशन में नहीं है। एक अमेजन है, अमेजन इज फॉर प्रोडक्ट्स नॉट फॉर सर्विसेज। अमेजन की सर्विसेज बनने के लिए फाइवर आए, फाइवर का नीचा पॉप मैंने शो किया, उन्होंने बताया कि फाइवर इज नथिंग बट अमेजन का ऑफ सर्विसेज है। बट व्हाट अबाउट अमेजन ऑफ लाइव इंटरेक्टिव सर्विसेज? अमेजन ऑफ लाइव इंटरेक्टिव सर्विसेज में कोई नहीं है। अभी हम एक कॉमन मास्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। आप alignttogether.live के पोर्टल पे जाते हैं हमारे, उसमें आप हमारा मिशन देखते हैं। हमारा मिशन ये है कि हम जो इंडिया में जो 5,000-7,000 रुपए कमाते हैं वो भी 50,000 रुपए कमा सकते हैं। चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में हो, चाहे वो सिखाते हो आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीज सिखाते हो, चाहे वो इंग्लिश में जॉली फोनिक्स कोई सिखाता हो, चाहे वो टैरो ट्रेडिंग कोई सिखाते हो, लाइफ कोचिंग में पेरेंटल कोचिंग कोई कराते हो, या फिर कोई पंडित जी और सत्यनारायण की कथा कराते हो, जो शायद 7,000-8,000 तक की रट में है, या फिर 25,000 भी बोले, पर एक इनफाइनाइट वर्ल्ड ओपन अप होता है उनके लिए। आपने जैसे देखा कि उसके सत्यनारायण कथा का आप दिवाली के समय अगर आपने न्यूज फॉलो करी हो तो आपने देखा होगा कि $100 तो मतलब शुरू होती है सत्यनारायण कथा की यूएस में, और वो जाती है $10,000 तक जाती है। इतना लोग चार्ज कर रहे हैं कैलिफोर्निया में और कई जगह पे, तो लोग यूट्यूब में कराना चाह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम ना यूट्यूब से बेटर हैं, इन द सेंस कि यूट्यूब में आदमी को टोटल आपकी मार्केटिंग जो एडवर्टाइजिंग है उस पर आप रिलाई करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अपना बोर्ड लगाते हैं, सर्विसेज की आप अपनी क्रिएट करते हैं, आप अपने पूरे रिक्वायरमेंट्स वगैरह मांगते हैं क्लाइंट से कि भाई जब चेकआउट होता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी बता दें हमें। तो पूरा CRM हमने उसमें डाला हुआ है। हमने उसमें अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के पूरे एल्गोरिथम्स बनाए हैं, बुकिंग के सबसे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स बनाए हैं, सब चीजें फ्री में दे रहे हैं। हम ट्रांजेक्शनल फी में हमारा बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। अगर $100 की सर्विस पे कोई लिस्ट करता है कोई सेलर अपनी सर्विस उसमें, तो $105 हम बायस लेते हैं, 5% ज्यादा लेते हैं, जो कि हमें कवर अप करता है हमारे लेजर पे की फीस और कुछ और फीस करने के लिए। और सेलर को हम जब सर्विस कंप्लीट होती है उसको 80% हम देते हैं, तो 25% के मार्जिन में हमारा बिजनेस मॉडल काम करता है। ये हमने काफी लोगों से पता किया, पूछा, उन्होंने बोला कि आप हमें फ्री में ऑनबोर्ड करने दीजिए, तो हमने कहा ठीक है फ्री में ऑनबोर्ड हो गया। उसके बाद आप बोलते जितना चार्ज करना 40% करना तो 40% करो, यूट्यूब तो हमसे 40% करता है, आपको यूट्यूब हमें वो करना है 40% कर लीजिए। हमने कहा नहीं 40% इज टू लार्ज अमाउंट, 20% गुड इनफ। अभी हमने ये बना के रखा है कि हम दिसंबर में लॉन्च कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, ऑल इंडिया के सेलर्स को हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक हमसे केरला के एक ब्रदर हैं नोबल जो वायलिन पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, वो जुड़ गए हैं यूट्यूब के। फकीर हुसैन दिल्ली के हैं जो यूट्यूब में उनका चैनल चलता है, वो हमसे जुड़े हैं। हैदराबाद से एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं वो जुड़े हैं। भोपाल से बात करें सविता गुप्ता है, एक कुकिंग में है। सरस्वती स्वामी ब्रांड कंसल्टिंग में है। विशाल जैन गिटार में है। ये सब जुड़ते आ रहे हैं हमसे। नवेंदु विश्वास को आप लोग जानते हो, उनका काफी भोपाल में नाम है, काफी फैन फॉलोइंग है। वो रिएक्ट नोट सिखाते हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं। शिखा दास इंग्लिश टीचर हैं, वो भी जुड़ी हैं हमसे। मनीषा गर्ग जॉली फोनिक्स हैं, वो सिखाते हैं, वो हमसे जुड़े हैं। ऐसे करके हमसे जुड़ते आ रहे हैं लोग। हमारा 10,000 सेलर्स को ऑनबोर्ड करने का है, और एज ए सेड ये मास्टर से जुड़ने का है। ऐसा सीके प्रहलाद ने किसी थ्योरी में बताया था कि बॉटम ऑफ पिरामिड, और वो कुछ ऐसी मैंने पढ़ी तो नहीं बुक, लेकिन कुछ उसके एस्पेक्ट्स मैंने पढ़े हैं इंटरनेट पे। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल कॉमन मास्टर से जुड़ता है तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें भी ये लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है ऐसा नहीं है कि वो जिनकी अर्निंग्स 1 लाख है तो उसको 2 लाख करेगा, वो भी करेगा बिजनेस मॉडल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इम्पोर्टेंटली ये है कि जिनकी अर्निंग्स बहुत कम है, जो थोड़ा सा वंचित रह रहे हैं, जैसे विशाल जैन है गिटार में, कुछ और है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि उनकी अर्निंग्स ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मतलब जीबीपी में हो सकती है, या यूएसडी में हो सकती है, यूरो में हो सकती है, और दे आर वेरी स्किल्ड। अभी अमेज जब हमने प्लेटफॉर्म किया तो मेरी टीम अमेज थी कि भाई इतना बड़ा टैलेंट भोपाल में बैठा हुआ। मैंने कहा भाई भोपाल एट द एंड ऑफ द डे इज टॉप 25 सिटी इन इंडिया। तो आप फाइवर में वर्क पे देखेंगे 25% ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम इंडियन पेनिसुला, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से हैं।
तो वो 25% में से आप ये मान के चलिए कि भाई हो सकता है कि 5% भोपाल से है, तो क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर है नहीं है तो होना चाहिए, पोटेंशियल तो है, एक्सपोजर जो मिलेगा तो Yes, sir. बिल्कुल आप आएंगे आगे। डेफिनेटली। तो या तो सर जैसे इस फील्ड में मैं बताता हूँ, जैसे व्हाइट हैट जूनियर भी आपका जो बिल्कुल मॉडल बनाया है वो भी इसी पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल कि जैसे आपके अंदर कोई भी स्किल है, आपको मासेस तक रीच आउट करना है, तो आप अपने आपको ऑनबोर्ड कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म में, बिल्कुल और फिर ज्यादा लोगों तक पहुंच करके आप एक अच्छा मतलब अपना एक ऑडियंस बेस बना सकते हाँ हो। धीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, व्हाइट हैट जूनियर भी हैं, ऐसे कई और पोर्टल हैं। हाँ। व्हाइट हैट जूनियर लाइव में कुणाल बजाज जी ने काफी अच्छा काम किया और एक अच्छा पोर्टल बनाया जो कि बाइजू उन्होंने फिर सेल कर दिया। Yes, sir. उसमें जो यूज केसेस चल रहे हैं Yes, sir. उसमें काफी लिमिटेशंस हैं, हम्म। वो अभी तक मार्केट में वही मैं नहीं जानना है। बेसिकली दे एग्रीगेटर। अगर हम व्हाइट हैट जूनियर की बात करें, वो एक तरफ एक पूल ऑफ स्टूडेंट्स को एग्रीगेट करता है यस सर। और एक तरफ पूल ऑफ टीचर्स को एग्रीगेट करता है, चाहे वो व्हाइट हैट जूनियर हो, चाहे वो सुपर प्रॉफ हो, Yeah. चाहे वो टीचमेंट हो, और ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जो एग्रीगेटर का काम करते हैं। अब एक तरफ स्टूडेंट को लाते हैं, एक तरफ इनको लाते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यस हम ये कर रहे हैं कि हम सारे टीचर्स को जो पढ़ाने वाले हैं, लाइव कोर्सेज हैं, Yes, sir. इन सबको आगे कर दे रहे हैं कि आप आइए, अपनी दुकान लगाइए, या और उसके साथ सारी चीजें। आपका कई प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आपकी एक्सपीरियंस स्टोर क्रेडेंशियल फॉर्म में नहीं बनते हैं। जैसे अगर हम लोग दो प्रोफेशन जो कि हम लोग अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट एक लॉयर का हुआ, एक डॉक्टर का हुआ, Yeah. एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो बहुत सारी एंजियोप्लास्टी करता है, तो उसका नाम नहीं होता है क्योंकि उसने जो एंजियोप्लास्टी की कितने लोगों ने देखी, किसी ने नहीं देखी। वो जो पेशेंट था उसको रिलेटिव ने देखी। तो यही अगर वो जाके पोर्टल में लगा देता, पोर्टल जाके उसको रिव्यू कर देता कि मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था, इसने मेरी एंजियोप्लास्टी की डॉक्टर ने, तो वो कई 10 लोग 100 लोग दे सकते हैं। तो वो स्टोर क्रेडेंशियल का कंसेप्ट है। लॉयर भी अगर एक केस जीतता है, उसको सबको जाके बताने का होता है, लेकिन वो बता पाता नहीं है, यस सर। तो उसको कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं अपनी धाक जमाने में। हाँ हम ये करें, स्टोर क्रेडेंशियल में आपने एक जन को गिटार बजाना सिखाया, उसने आपका फीडबैक दिया, दूसरे को सिखाया, दूसरे ने दिया, आपने 20 लोग को सिखाया, 20 ने फीडबैक। तो ये रिव्यू मैनेजमेंट एक स्टोर क्रेडेंशियल का काम करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी जितने भी आपके टीचर्स आ रहे हैं वो अपना बोर्ड लगा के बैठे हैं। हमने उसको पूरी स्केड्यूलिंग दे रखी हुई है। आपकी कई अलग टाइम जोन में प्रॉपर स्केड्यूलिंग हो सकती है। आप इंडिया टाइम जोन में काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में अलग अलग टाइम जोन में हैं, आप अपने हिसाब से वो क्लासेस देख सकते हैं, अपने सर्विसेज को कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक फाइबर में भी लिमिटेशन ये आता है कि उनके जो टीचर्स एजुकेशन वाले हैं, बंदे हैं, ऑनलाइन जो कर रहे हैं, वो क्लासेस नहीं बना पाते हैं हाँ। और 1-to-1 करते हैं। यस सर। हम लोग 4 तरह से इसमें सर्विस क्रिएट कर पा रहे हैं। ये हमने बहुत अच्छे मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स उसमें लगाए हैं। ओके। सिंगल सेशन 1-on-1, ओके। मल्टीपल सेशन 1-on-1, फिर सिंगल सेशन ग्रुप एंड मल्टीपल सेशन ग्रुप। तो ये एल्गोरिथम जो बनाए हैं वर्ल्ड में सबसे यूनिक है। हमने इसको बनाने के लिए दैट इज द की डिफरेंशिएटर। हाँ, इसमें हमने 200 अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग के सॉफ्टवेयर के देखे हैं। उनके कई सारे लिमिटेशंस थे, उनको देखा गया। बहुत सारे मार्केट प्लेसेस देखे जिसमें व्हाइट हैट जूनियर भी है, मैंने बताया कुछ हाँ, नाम भी। इन सबको स्टडी करके हमने बताया कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारी जो एप्लीकेशन है, ये अलग तरीके की है। इससे बेनिफिट जो कस्टमर्स को आ रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, एक्रूड बेनिफिट्स एंड द एक्रूड एडवांटेजेस, इन तीनों डायमेंशंस में, फीचर्स में, बेनिफिट्स में, एडवांटेजेस में हमारा एक अलग ही पोजीशनिंग है। अभी हमारे साथ चैलेंज है कि हम कैसे ये दुनिया में लोगों के पास पहुंचाएं चीजों को, कि ये वाला एक Live प्लेटफॉर्म बना है। यस सर। अगर इफ एवरीथिंग गोज फाइन, हमारी जो बिजनेस फोरकास्ट है कि वी शुड बी 200 मिलियन इन नेक्स्ट 7 years। ओके। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। सर जैसे आपने बताया प्रोडक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें मदर है, वो कोई कुकिंग चैनल स्टार्ट करती है, बिल्कुल, और वो ऑनबोर्ड करना चाह रही है आपके से कुछ प्लेटफॉर्म में, तो क्या प्रोसेस रहेगी? और या उसके लिए मुझे आपको पहले से कस्टमर बेस दिखाना पड़ेगा, जैसे मेरी ऑडियंस? बिल्कुल नहीं। आपकी मदर मैम जो है बिल्कुल 10 मिनट में ऑनबोर्ड हो सकती है। ओके। उनको जाके live पे जाना है, रजिस्टर दबाना है। रजिस्टर में हम लोग ईमेल वेरिफिकेशन सबसे पहले करते हैं, तो ईमेल पे आपको ओटीपी आ जाता है और आप 5 मिनट में रजिस्टर हो गए। ईमेल हमारा AWS का हमने SMS फीचर लगा रखा है, इंटीग्रेट किया हुआ है। हमने बहुत से इंटीग्रेशन किए हुए हैं, तो AWS का इंटीग्रेशन है, उससे ओटीपी आपको आ जाता है। उसके बाद आप अपने को सेलर ऑनबोर्ड करना होता है आपको। सेलर ऑनबोर्डिंग में हमने जूम इंटीग्रेशन कर रखा हुआ है। ओके। जूम इंटीग्रेशन से आपका जो खुद आपका जूम अकाउंट है, चाहे वो पेड है, नॉन पेड, फ्री वाला है, वो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। Not many companies in India would have done a Zoom integration. Yes sir, definitely. Here we are competing with Byju's. Like Byju एक बहुत बड़ा कस्टमर है, इसने Zoom इंटीग्रेशन किया है, और एक दो कुछ और कंपनीज इन्होंने अच्छे से इंटीग्रेट किया है। हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस में करीब 1 महीना लग गया। Okay.
तो अब जब हमने बनाया तो हमें लगा बहुत अच्छा लगा कि हमें इतना टाइम लग गया, तो पता नहीं बाकी लोगों को तो कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि हम तो जैसे ही जूम का कुछ कंसर्न आता था तुरंत उस पर बैठ जाते थे। रात के 10 बजे एकदम से समझ आया कि उसने कैलिफोर्निया से कंसर्न भेजा, हमने उसको सॉल्व किया। तो जूम इंटीग्रेशन करेंगे मैम, अपना जूम अकाउंट होगा, उससे सेल बोर्ड हो जाएंगे और फिर अपनी सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस क्रिएट के आगे 5 स्टेप्स हैं जो कि शायद 15 मिनट पे वो कर सकते हैं और उनकी सर्विस पूरी ब्रॉडकास्ट हो जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में। अपनी अवेलेबिलिटी को बता देंगे कि मैं कब कब कुकिंग क्लास देना चाहती हूँ। तो एज ए सेड कि 4 तरह की सर्विसेज हैं। 4 तरह की सर्विस में 3 तरह की सर्विस थोड़ा रिलेटिवली सिमिलर है। चौथी सर्विस मल्टीपल सेशन ग्रुप, ये अलग चलती है। 3 तरह की सर्विसेज में यूजर के बायर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि जैसे वो पीवीआर सिनेमा या बुक माई शो में जाके स्लॉट चूज करते हैं, वैसा स्लॉट आपकी मदर की क्लास के हिसाब से, और बिल्कुल तो 8 बजे की क्लास है, 9 बजे की क्लास है, वो चूज कर सकते हैं। चौथी तरह की सर्विस में जब मैम चाहेंगी कि मुझे मल्टीपल सेशन ग्रुप देना है, मुझे 20 लोगों को पढ़ाना है और मैं सैटरडे संडे 1-2 सेशंस का एक कुकिंग क्लास का रखूंगी, तो वो मल्टीपल सेशन ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है। वो पहले से शेड्यूल करते हैं कि मैं 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को ये वाली क्लास लूंगी। वो वाली सर्विस पहले से फ्लेक्सिबल और यू हैव टू मेंटेन दी कंसिस्टेंसी कि आपको रेगुलरली आपको उसी टाइम जोन में ही आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपको जब करना चाहिए, जैसे किसी ने बोला है कि भाई आपकी मम्मी ने बोला कि मुझे कुकिंग सिखानी है और मैं कुकिंग में सिर्फ एक डिश सिखानी है, तो मैं आप जैसे बादाम का हलवा अगर सिखाना है तो मैं एक बादाम के हलवा की एक सर्विस बना देती हूँ और उसमें आप बोलेंगे कि मैं सुबह 7 से 8 1 घंटे की कुकिंग क्लास है जो कि मैं एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के लोगों को सिखाना पसंद करूंगी। और शाम को 7 से 8 मैं जो यूएस और कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज हैं, यहाँ के लोगों को सिखाना पसंद है, यूरोप के लोगों को सिखाना पसंद है। तो वैसा आप से कर सकते हैं। तो सुबह आप जो अवेलेबिलिटी देंगे मैम, वो देंगे सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8। ऐसे करके आप 2 घंटे देंगे और विद इन 2 आवर्स आपके बादाम के हलवे की रेसिपी से ही आप चाहें तो आई थिंक यू कैन मेक एटलीस्ट 7 to 10,000 स्टार्टिंग में ही आपके बन सकते हैं। तो अभी जैसे सरिता गुप्ता जी है, तो इनका शी हैज अ वेरी गुड स्टूडियो इन भोपाल। अभी अमेज की ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म पर स्टूडियो है, यूएस के लोग भी उनके पास आते हैं और सीख रहे हैं कुकिंग के लिए। तो उन्हें बताया कि भाई मैं इतनी सारी डिशेस सिखा सकती हूँ और इंडिया के बाहर मेरा बहुत पोटेंशियल है इन सबको सीखने के लिए। देयर आर पीपल हु वांट टू लव ऑथेंटिक डिशेस। तो ऑथेंटिक डिशें, अब ये आएगा कि भाई अगर किसी को मसाला डोसा सीखना ही है कहीं यूएस के किसी रेस्टोरेंट में, तो मसाला डोसा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो क्या मसाला डोसा की कुक को बोलेगा अपने कि भाई मुझे कोई 10 कुक नहीं रखना है 10 डिशेस के लिए। न्यूयॉर्क का आप जानते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहां के लोगों को बिबिम्बप भी चाहिए, डिमसम भी चाहिए, साउथ कोरियन डिशेस भी चाहिए और इंडियन डोसा भी चाहिए। तो वो 10 कुक को नहीं रख सकता अलग अलग, बट ये है कि वो एक साउथ कोरियन कुक होगा जो डिमसम में पढ़ा रहा होगा, तो उसको बोल सकता है तो मसाला डोसा चेन्नई के पास जाओ, बंदे के पास जाओ और उससे ऑथेंटिक रवा डोसा, मसाला डोसा ये सीखो। तो ये सारे यूज केसेस पॉसिबल होने हैं। इंडिया का जो टैलेंट, अभी हमने इसको इंडिया से ओपन किया है क्योंकि लेजर पे हमें इंटरनेशनल पेमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी इंटरनेशनल पेमेंट तो करने वाला है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, बट आरबीआई की गाइडेंस कहती है कि हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नहीं कर सकते। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम एकदम से जो सेलर्स हैं हमने इंटरनेशनल सेलर नहीं रखे हैं, हमने केवल इंडिया से शुरू किया है। कुछ समय बाद हमारे सेलर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं। दे कुड बी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट कुड बी फ्रॉम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चलेगी क्लासेस से, रिकॉर्डेड जो आपका वो रहेगा, रिकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पास एक यूज केस है कि आप अपना जैसे योगा टीचर हैं या फिर कुकिंग की बात कर लें, तो अगर उनको बादाम का हलवा किसी को सिखाना है तो ऐसा नहीं है कि वो बादाम का हलवा सबको बना के सिखाना है। व्हाट शी कैन डू इज शी कैन प्री रिकॉर्ड हर वीडियो कि मैंने बादाम का हलवा 20 मिनट में कैसे बनाना है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। तो लाइव इंटरेक्टिव तो रहेगा। मैम ये कर सकती हैं कि वो अपना क्वेश्चंस लें उस समय। इनफैक्ट सम ऑफ आवर अदर कंपनीज लाइक बाइजू आल्सो डू द सेम थिंग, दैट दे हैव अ प्री रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड देयर इज अदर टीचर हु टेक द क्वेश्चंस। इनफैक्ट सभी भाटिया जी का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो हॉटमेल उन्होंने बनाया था। इंडिया में बहुत सारे पोर्टल्स आ रहे हैं जो सिखाने की बात कर रहे हैं कि हम ये सिखाएंगे, हम वो सिखाएंगे, बट इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम नहीं है। तो ये मेरा कहना है कि आने वाला समय इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम का है। अगर आप जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं कि मेरे को कौन पढ़ा दे रिएक्ट एंड नोड। मुझे कुछ सिलेक्टिव डाउट्स आते हैं जो मेरे लिए होते हैं, मुझे पूछना होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं ऐसे रिएक्ट के टीचर के पास या फिर किसी मतलब कुकिंग में ही बात करें तो मुझे डाउट है। बादाम का हलवा तो मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन बादाम का हलवा में मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों आती है
या मैं रसगुल्ले तो मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन रसगुल्ले मेरे इतने अच्छे क्यों नहीं बनते कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, अंदर से गठान क्यों पड़ जाती है। हाँ, तो ये वाली चीजें yes. प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम का जमाना है। यस, आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाइए, उसके क्वेश्चंस लीजिए। सेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ द पीपल हैव टू चेंज देयर लाइफ। कि भाई हमने बादाम का हलवा का आपको 15 मिनट पूरी रेसिपी बता दी, समझा दिया, अब आप बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन लेना, आंसर करना, ये ह्यूमन मैनकाइंड की बात रही है। वी लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल। अगर मैं बोलूं कि मैं लिंक्डइन पे वीडियो देके पढ़ लेता या फिर ये कर लेता, तो मैं नहीं समझता कि हर किसी को सब कुछ आ जाता। एक क्वेश्चन सर मुझे एक और माइंड में आ रहा है, छोटा हो सकता है, वो थोड़ा सिली क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आप जैसे आप बता रहे फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, वो यहाँ से इंडिया से अपना कुकिंग का कोई क्लास वो सेशन दे रहे हैं यूएसए के लोगों को, और क्यूएनए सेशन में वहाँ के जो लोग सीख रहे हैं ऐसे कोई लैंग्वेज में तो नहीं जिसे वो क्वेश्चन थ्रो करेंगे और यहाँ के उनको नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल वो हिंदी ज्यादातर मोस्टली प्रेफर करते हैं, तो वहां से अगर इंग्लिश में अगर वो कर रहा है तो बीच में ऐसा ट्रांसलेटर कुछ होगा या क्या है कि जिससे वो इजिली इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल भी जैसे हमारे कोई विलेज कुकिंग चैनल्स भी चलाते हैं जो वहाँ की डिशेस को दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे होता है पूरा। तो अगर वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो गई है, मोस्टली लोग यूज कर पा रहे हैं, तो वो लोग अगर ऑनबोर्ड करते हैं और वो अगर वो चाहते हैं कि हमको बाहर का एक्सपोजर मिले, और तो क्या लैंग्वेज का कुछ ऐसा सच कुछ होगा कि मतलब ओके, सो देखिए प्लेटफॉर्म अभी मल्टीलिंगुअल भी हम बनाने वाले हैं। अभी जैसे हमने एक लैंग्वेज को मेटाडा रखा हुआ है, हर एक सर्विस में आपको मेटाडा लगाना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में सेशन देने वाले हैं। तो उसमें लैंग्वेज की लिस्ट है, करीब 30 लैंग्वेजेस हैं। उसमें कन्नड़ा भी है, तमिल भी है, सारी लैंग्वेजेस हैं। आपको पहले से बता देना है कि भाई मैं इस लैंग्वेज में दूंगी, हिंदी में दूंगी या फिर इंग्लिश में दूंगी। अब आप हिंदी में आपने लिखा हुआ है, सामने वाले को समझना पड़ेगा कि हिंदी में ही बात होनी है, तो हिंदी के लिए है। तो एज ए सेलर मैं बोलूंगा आप तो अपनी लेवल टू स्ट्रेंथ करिए। केवल प्लेटफॉर्म पे आपको इंग्लिश में देने के लिए आपको इंग्लिश सीखनी ऐसा नहीं है, आप हिंदी में दीजिए। और गौर करने की बात यह है कि जो विदेशी बाहर रहते हैं, भारतीय विदेशी में रहते हैं, वो शायद ज्यादा इंडियन होते हैं, वो ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे हिंदी में बात करना। तो उनको अगर रसगुल्ला की रेसिपी सीखनी है तो उनके लिए मैटर नहीं करना चाहिए कि हिंदी में बात की जा रही है, इंग्लिश में बात की जा रही है। ऑफकोर्स जो अगर न्यूयॉर्क एक रेस्टोरेंट वाला है और जो बंदा है वो इंग्लिश बोलता है, तो उसके लिए इंग्लिश के लोगों को आनी पड़ेगी, ये जरूरी है। यस सर। आप उसके लिए आपको वैसा वाला आपको टारगेट मार्केट है, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने साथ जब आप पढ़ाने हैं तो उसके साथ में ट्रांसलेटर जो कि क्वेश्चंस वगैरह आपके वो कर। ये सर, इसलिए मैंने थोड़ा सा पूछा कि ये भी एक लोगों को क्वेश्चन आता ही आता। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चंस हैं। बेसिकली दो लोग जब मिल रहे हैं तो एक लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए। अगर हिंदी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो थोड़ा सा उसका मैं बता दूंगा। जो आपका न्यू प्रोडक्ट अभी आप लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो मैं कुछ पंक्तियां इस पे कहूंगा कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप जिस मिशन पे चले हैं वो आप अचीव कर पाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। आप लोगों का सहयोग चाहिए और पूरी मतलब मैनकाइंड का सपोर्ट चाहिए इसको प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनने के लिए। यस सर, डेफिनेटली सर, क्योंकि आपका जो वर्किंग मॉडल है और जो आपने बिजनेस मॉडल भी एक्सप्लेन किया काफी यूनिक है सर, और इतने सारे आपने यूज केसेस एंड ऑल सब स्टडीज कर रहे हैं, तो सर मुझे लगता है काफी वर्कफुल है। और हम लोग भी, क्योंकि बच्चे हैं मेरे जैसे हैं अभी मेरे साथ भी आए, ये सभी सिखाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने आप को और कैसे आप स्केल अप कर सकते हो मासेस पे रीच करने के लिए। क्योंकि लोकल कम्युनिटीज में ठीक है, लोग जानते हैं यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म ठीक है, बट लेकिन मास एक्सपोजर चाहिए तो आपको फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करना चाहिए। डेफिनेटली मैं भी करूंगा सर, और मैं लोगों को और प्रोत्साहित करूंगा और आपके इस जो आपका मिशन है उसके बारे में और हम लोग लोगों को बताएंगे। ओके, सो अगर मैं अपने कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ, वो फाइवर बिजनेस करके करता है, उसमें वो पूल ऑफ पीपल करता है। अभी हमने जो लॉन्च कर रहे हैं इसमें हमने वो कम्युनिटी वाले फीचर नहीं डाला हुआ है कि एक बंदे का बैंक अकाउंट हो और उसके अंदर में 10 लोग काम कर रहे हैं। ये वाला यूज केस हम विद इन 6 मंथ्स हम काम करेंगे इसमें, कि बैंक अकाउंट एक ही का जाएगा वही, और वो एक एंट्री रिप्रेजेंट करेगी अपने 10 लोगों को। तो हमारे प्लेटफॉर्म में देखिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि अभी हम लोगों को जूम में लिंक पे मिला रहे हैं। कल के दिन जो सैलून वाले होते हैं
उनको हम ऐसा कर सकते हैं कि सैलून वाले अपनी सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, या तो वो कस्टमर के प्रोवाइसेस में जा सकते हैं होम विजिट के लिए, या फिर कस्टमर उसके पास उसके सैलून में आ सकते हैं। ये वाला यूज केस भी हमें अगले 3 साल में डालने हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक रोड मैप है 3 साल का है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन था वो भी आंसर करता है कि विद इन 3-6 मंथ्स हम वो वाले को लॉन्च करते हैं कमेटी में, और उसके बाद वर्चुअल मीटिंग की जगह हम फिजिकल मीटिंग्स में लोगों को करते हैं। तो देयर आर सर्टेन पजल्स इन आई थिंक इन ह्यूमन काइंड की उसमें काफी कॉन्स्टेंटली काम चलता है। वन ऑफ द थिंग वाज लॉजिस्टिक्स, जो मैंने पढ़ा था सप्लाई चेन में, कि भाई वॉलमार्ट का ट्रक निकलता है पीएनजी के वेयरहाउस से, और उसको पीएनजी का एक ट्रक निकलता है पीएनजी के फैक्ट्रीज से यूएसए में, और उसको वॉलमार्ट की बहुत सारी खाना पूर्ति करती होती है जगह जगह पे। आई थिंक उन्होंने पहले बताया था कि शायद 15% पीएनजी का सामान जो है वॉलमार्ट ही लेता है, तो लार्जेस्ट कस्टमर इन द वर्ल्ड फॉर पीएनजी। तो वो जब निकलता है तो उसको कभी कैसे कैसे लॉजिस्टिक कहाँ कैसे ड्रॉप करना है, किसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किस वॉलमार्ट की, एक ही मटेरियल की 2 लोग को वॉलमार्ट को जरूरत है तो किसको जल्दी देना है, किसको कितना देना है, ये सारी रियल टाइम शेड्यूलिंग वो सब की जाती है उनके लिए। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो बना रहे हैं line2the.live, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ अटैक कर सकता है। इवन हम लोग कर भी रहे हैं। अगर हम देखें डांस विद माधुरी के साथ भी हम कंप्यूट कर रहे हैं, dancewithmadhuri.com इसके साथ कर रहे हैं, ऑनलाइन पंडित जी के साथ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कथक.com से भी कर रहे हैं, बायजू से भी कर रहे हैं, और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिनसे हम हेड ऑन पोजीशन कर रहे हैं। फिर हम अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग से भी कम्पीट करते हैं कि हम अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फ्री वाला दे रहे हैं, जो कि कोई और नहीं दे रहा है। कैलेंडरली है वो $7 से शुरू हो रहा है, चार्जेबल है, तो हम उससे भी कम्पीट कर रहे हैं। तो एक एक करके हमें यूज केसेस अगले 3 साल में करने हैं, एंड मोर एंड मोर वी विल बी एब्जॉर्बिंग द एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग। मैं बात करूंगा उसके एल्गोरिथम्स हमें लगाने हैं, टेंसरफ्लो आर इन द होराइजन के हमें सब इम्प्लीमेंट करने रहेंगे इन सब में। अभी हमें लॉन्च करना है जो है, अगर आपने देखा हमने मीम्स वगैरह निकालना शुरू किए हैं, मैंने देखा था। अभी हमें मेसी का दिया हुआ है, अभी रोनाल्डो का करने वाले हैं। तो मीम्स वगैरह करके हम अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अडॉप्शन चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग आप हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं, वो उसको अडॉप्ट करें और हमें आगे जाके इसको लिस्ट करें। अगला चार्टर, इमीडिएट चार्टर जो है कि हमें स्ट्राइप का भी हमें पेमेंट गेटवे लगाना है। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, स्ट्राइप कनेक्ट पेमेंट गेटवे केवल यूएस कंपनीज के लिए मिलता है। एज ए सेड कि आरबीआई गाइडलाइंस डजंट अलाउ द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। हम यूएस में रजिस्टर करेंगे, यूएस में रजिस्टर करके स्ट्राइप कनेक्ट पेमेंट गेटवे लगाएंगे, जिससे सेलर्स कैन बी फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो ये इमीडिएट प्रायोरिटी है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जो आपने फीचर की बात करी, ये भी हमारे प्रायोरिटी एरिया में, उसको हमें अपने रोड मैप में डाल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी जो एज पर कम्युनिटी है, एज पर एज अ कम्युनिटी कैन ऑन बोर्ड, और उसके अंदर जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, दे कैन प्रोवाइड फ्रीलांसिंग सर्विसेज अंडर द एज पर अम्ब्रेला। डेफिनेटली वो वाला यूज केस भी कंप्लीट हो जाएगा। और सर अगर कोई ऐसा जैसे मैंने कर दिया एज अ इंडिविजुअल, तो वहाँ पे मेरे बजाय ये पढ़ा रहा है फिर वो पढ़ा कर रहा है। देखिए, हाँ, तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं फॉर द टाइम भी, वो थोड़ा जुगाड़ वाला है कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो आप बताइए कि देखिए ये सर्विस हम लोग दे रहे हैं, हम 4 लोग हैं। आप देखिए हर सर्विस में वीडियो बनाना कंपलसरी रखा है हमने। आप शुरू से बताइए कि ये वाली सर्विस हम लोग देते हैं और हम 4 लोग हैं, और जो ये सर्विस मिलके देते हैं, कभी एक बंदा देगा, कभी दूसरा बंदा देगा, कोई चौथा देगा, तो इससे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आप अपना एक अकाउंट दे दीजिए, आपने आपस में अपनी समझाइश रखिए कि पैसे जो भी आएंगे वो इस अकाउंट में आएंगे और वो बांट लिए जाएंगे, आपने जितना एफर्ट डाला है वो आप अपने एंड में कर लीजिए। आप प्लेटफॉर्म यूज करिए, जब तक आप यूज करेंगे वायस आना शुरू होंगे, तब तक हो सकता है कि हम अपना फीचर बना के इम्प्लीमेंट कर दें। लास्ट में कुछ कहना चाहूंगा कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो उसी के साथ आज का पॉडकास्ट वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।